Hey everyone, this is Shweta Shalini welcoming you all in Excellence Point. As we have already taught about this, that we are going to release some of like 10 to 15 videos where we are going to talk to you about these topics which are just common for you all, like about the tenses and some of the grammar topics. In such a way we are going to deal, and especially I am here to deal with that particular topics which is just common for all the exams, as well as especially it is targeted for the CBSE and ICSE board examination. Before moving further, let me tell you that what topic I am going to cover in today's class. In first session, that all I have mentioned to you that I am going to release just 10 to 15 videos where you will be clear in one short revision that what the topic will be. जैसा मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि ये 10 to 15 वीडियोस आपको ये बताने वाली हैं कि आप कितने शॉर्ट वे में, कितने ईजियर वे में अपने ग्रामर के मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको आप कवर कर लेंगे। उन्हीं टॉपिक्स में से आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे सेशन का, वो आज स्टार्ट होगा। दैट इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द टुडेज सेशन, दैट इज टेंसेस। टेंसेस वन शॉर्ट रिविजन क्लास. In today's class, I'll be going to tell you what are the basic tips and tricks through which you can learn tenses in a very easier manner. Okay, tenses. First, before moving further, we need to know that what is the basic definition of tenses. We need to know that what is tenses. सबसे पहले हमें ये देखना है कि tenses होते क्या हैं. It is a form of verb that allows you to express time. Basically, tenses क्या बताते हैं? Tenses हमें particular period of time के बारे में बताते हैं कि किस वक्त वो काम हो रहा है. It tells you about the time. As it is mentioned in the definition, it is a form of the verb that allows you to express time. Basically, whenever the action is being done, this tense will tell you that when it is done. Tells you about the time, that particular period of time, that when the work is done. On the next, types of tenses. Tenses की definition के बाद we need to go further that tenses के type कौन कौन से होते हैं. हमने tenses की definition पढ़ी, tenses के type क्या क्या हैं. जैसा कि ये पर्टिकुलर चार्ट आपको बताएगा that what are the three types of tenses. The three types of tenses are present tense, past tense and the future tense. Where we do have type of these tenses, each tense is divided into four types, or you can say four parts. Simple or indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. Same for this past tense and same for this future tense. Simple indefinite present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Next to it, past tense, simple indefinite past tense, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Next to it, future tense, simple indefinite future tense, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Basically, we have divided these tenses in four basic parts. And अभी ये जो tense का हमने description दिया, tense की definition के बाद उसके types हमने पढ़े. Basic हमारे ये तीन types mention कर रहा है, present tense, past tense and future tense, और हर एक का आपके चार पार्ट मेंशन किया जा रहा है. If you are moving with me, if you are studying with me, if you feel like that you want to make notes at the same time regarding your study, go ahead guys. This will be easier for you all to understand the topic in a very easier manner. होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं और साथ साथ नोट्स बनाते हैं, वन शॉट रिविजन कहने का मतलब यही नहीं होता कि लाइक व्हाटसोएवर यू आर हियरिंग, व्हाटसोएवर यू आर स्टडिंग एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ज़रूरी ये होता है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर एट द सेम टाइम आप अपना एक सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाएंगे ना, तो ये आपके लिए एट द एंड of the exam
इजी होगा। एक बार अब करना क्या है, अब साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट आप एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले वो नोट्स अगर उठाकर देखेंगे तो ये इजी होगा टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, मूविंग फर्दर, I have mentioned one more thing that is a kind of important note for you all to understand this tense. Always use with. What to always use with? Indefinite tense. जब भी हम indefinite tenses की बात कर रहे हैं, ये indefinite तीनों के लिए है, indefinite tenses की बात करेंगे, हम verb का first form use करते हैं। exception भी है हमारे पास, exception दे रहे हैं except indefinite past, सिर्फ इनडेफिनेट पास्ट को छोड़कर, क्योंकि वहाँ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट टेंस जितने भी होंगे वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, लेकिन जब हम बात करेंगे पास्ट की, जो कि एक्सेप्शन है हमारा इनडेफिनेट में, वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। वी आर गोइंग टू यूज़ द वर्ब सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट टू इट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए मेंशन कर रहा है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ यूज कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग कॉन्टिन्यूअसली, जो चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है, तो वहाँ पर हम ing फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की जब भी बात करेंगे, यहाँ पर परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस की जब भी बात की जाएगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट टू इट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपके सभी के लिए है, लाइक इन प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज इन फ्यूचर। इसके साथ हम बीन, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing यूज किया जाएगा। बीन विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing यूज किया जाएगा इन केस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टू इट, वी डू हैव सम मोर important points, that is to understand this thing in a very easier manner we need to know for negative। जब भी हम negative sentences लिखते हैं, for negative what we need to go for, we need to add not after the helping verb। बेसिकली जब भी नेगेटिव की बात होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने की बात आती है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है नॉट वर्ड। क्या ऐड करना है, हमें नॉट वर्ड ऐड करना है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट ऐड कर देना है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करना होगा तो क्या है हमारा यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा है वो है, दैट इज यू नीड टू शिफ्ट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग। हेल्पिंग वर्ब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बिगिनिंग में चला जाएगा जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट टू इट, फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमें मेंशन करने होंगे, फ्रेम करना होगा इसका सेंटेंस, तो व्हाट वी नीड टू गो फॉर, first form the negative sentence, first form the negative sentence and then shift the helping verb in the beginning। सबसे पहले हमें negative sentence frame करना है, सबसे पहले negative sentence की framing करेंगे, then at very next what we have to go for, we have to add helping verb, this helping verb in the beginning। और sentence की framing करने के बाद एट वेरी फर्स्ट सेंटेंस के बिगनिंग में ही हम हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे। दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू इन सेंटेंस framing actually। So what we have understood, that what are tenses, I have told you that the basic definition of tense, types of tenses, what are their parts, and at very next these are some of the important point that where you have to use such verb forms। आपको इन verb forms का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ बेसिक यूजेज होने हैं। नेक्स्ट टू इट, सेंटेंस फ्रेमिंग में आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सेंटेंस फ्रेम, इन सारे सेंटेंसेस को जब भी फ्रेम करना होगा तो बेसिकली आपको क्या वो पॉइंट्स है दैट यू नीड टू मेमोराइज इन योर माइंड बिफोर राइटिंग
sentences. Okay, these are some of the basic points. If you guys wants to write in your notebook, if you guys wants to write notes, go ahead. I'm just giving you 1 to 2 minutes, just write in your notes copy, then we'll move for the next basic points. Go ahead everyone. आई होप आप सबको क्लास में सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बिकॉज ट्रस्ट मी एवरीवन, इफ़ यू आर स्टडिंग my every lecture, if you are attending my every session in a very good manner, or if you are getting my points, definitely it will help you all to understand these tenses, not even tenses only, to understand every topic of grammar which I am going to cover in these videos. It will be helpful and you will understand those topics in a very easier manner. ओके, नेक्स्ट टू इट, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, नेक्स्ट हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज एंड डिड. वर्ब यूज्ड विथ एंड द वर्ब फॉर्म विच इज बेसिकली गोइंग टू यूज्ड विथ इट. वर्ब कौन कौन से होंगे वो, जिनका हम यूजेज किसके साथ करने वाले हैं, और कौन सा बेसिक वर्ब फॉर्म होगा जो कि यूज किया जाएगा इन वर्ब्स के साथ. डू, डज, डिड. डू बेसिकली यूज्ड विथ आई, वी, यू, दे. वर्ब फॉर्म कौन सी होने वाली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने वाली है. डज, ही, शी, इट यूज होगा, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी होने वाली है. डिड के साथ आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे यूज होंगे, एंड वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म ही यूज होने वाली है. ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें डू, डज, डिड की बात की है, उनके यूजेज इसमें मेंशन है जस्ट इन फ्रंट ऑफ दोज वर्ब्स, एंड वर्ब फॉर्म बेसिकली जो यूज होने वाला है वो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी. एट वेरी नेक्स्ट, इज, एम एंड आर, ये हमारे तीन और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. am, is, are. am used with I, is used with he, she, it. are used with you, they, we. इन सभी के साथ बेसिकली इन तीनों के साथ जो वर्ब फॉर्म यूज होने वाली है वो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing. अभी जो हमने ऊपर ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ning यूज होने वाला है. व्हेनेवर वी आर राइटिंग लाइक एम, इज, आर, वर्ब जो यूज हो रहा है बेसिकली इनका यूजेज हम आई, इसका, ही, शी, इट के साथ करते हैं और वर्ब की ये वाली फॉर्म जाती है. नेक्स्ट टू इट, हैज़, हैव एंड हैड की बात करेंगे. हैज़, हैव और हैड की बात करेंगे. हैज़ का यूज़ होता है ही, शी और इट के साथ. हैव का यूज़ होता है आई, वी, यू एंड विद दे. हैड के यूजेज हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे के साथ. बेसिकली जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होने वाली है वो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म. बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे, याद रखेंगे. मोस्टली वी नीड टू रिमेंबर दीज बेसिक पॉइंट्स, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे टेंसेस को याद रखने में. और जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम आती है हमें कि कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वर्ब फॉर्म कहाँ यूज़ करेंगे, क्या फ्रेम होगा, सेंटेंस गलत लिख देते हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि टेंसेस, एज आई मस्ट से, टेंसेस बहुत लेंदी है, काफ़ी लेंदी है. इसको समझना इज़ लाइक यू नीड टू गिव अ प्रॉपर टाइम. बट ये कुछ ईजीएस्ट टिप्स हैं जिनके थ्रू आप टेंसेस के कुछ पॉइंट्स याद रख के क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से टेंस पढ़ सकते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स के पॉइंट मेंशन किए हैं यहाँ डू, डज, डिड के लिए, इज, एम, आर के लिए, एंड हियर फॉर द हैज, हैव एंड हैड. ओके, नेक्स्ट, हियर द थिंग इज व्हाट डू these
actions signify. बेसिकली आपके सामने 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये क्या बताते हैं, आखिर टेंस में ये किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं. इनडेफिनिट सिंपल टेंस, इनडेफिनिट सिंपल टेंस कहता है डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट. काम हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा इनडेफिनिट सिंपल टेंस ये बात नहीं बता पाता, इसीलिए मेंशन कर रहा है इसका काम क्या है. डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट, काम हो चुका है या नहीं हुआ है ये नहीं बता पाएगा. कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्शन गोइंग ऑन, कॉन्टिन्यूअस यानी कि काम अभी भी चल रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूएशन में है, इसीलिए मेंशन कर रहा है एक्शन गोइंग ऑन, काम चल रहा है. परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स समथिंग कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड फिनिश्ड, कोई काम जो आपने शुरू किया था पहले वो अब हो चुका है. दैट मीन्स द एक्शन is now completed, something is finished, the work which you have already started earlier, now it is finished. Perfect continuous tense, action began in the past and still continuing, कोई काम आपने पहले शुरू किया था और इस वक्त अभी भी वो काम चल ही रहा है, समथिंग इज इन कॉन्टिन्यूएशन, तभी ये मेंशन कर रहा है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहने का मतलब होता है कि कोई काम आपने पहले शुरू किया है और अभी भी वो काम चल रहा है, समथिंग इज इन कॉन्टिन्यूएशन. वन बाय वन एक एक करके हम सारे टेंसेस पढ़ेंगे दैट व्हाट इट बेसिकली वांट्स टू डिस्क्राइब. इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस के टाइप्स जो हमने पढ़े थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनमें हर एक टेंस के 4 टाइप्स का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था. फर्स्ट टाइप दैट इज इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो पढ़ेंगे. क्या बोलता है इसका बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे. दैट द एक्शन इज सिंपली मेंशन, नथिंग बीइंग सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस. समथिंग इज गोइंग ऑन, सम वर्क इज गोइंग ऑन, कोई काम चल तो रहा है पर ये खत्म हो चुका है या अभी भी चल रहा है, नथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, कुछ नहीं बताया गया है कि ये खत्म हो गया है या नहीं हुआ. दैट मीन्स कोई काम खत्म हो गया है या नहीं. एग्जाम्पल मेंशन कर रहा है, ही स्टडीज ग्रामर एवरी डे, ही स्टडीज ग्रामर एवरी डे, कंप्लीट हो चुका है, अभी भी पढ़ेगा, आगे भी पढ़ना है, ये नहीं पता. समथिंग इज गोइंग ऑन बट इट इज कंप्लीटेड और not mentioned over here. This is about the basic or specified definition of the indefinite simple present tense. Next to it, next tense, perfect continuous और perfect continuous, इसी तरह इसके बाद पढ़ेंगे. अभी सबसे पहले सारे बच्चे नोट करेंगे इसको, जो भी आपके सामने ये नोट्स हैं. अभी इससे पहले जो भी आपने मेंशन किया उसी के कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट नोट्स भी मेंशन करेंगे, देन हम आगे की डेफिनेशन को कवर करेंगे. एवरीवन गिविंग यू गाइज 2 minutes, गो अहेड.